مضبوط بندش لگا کر بند کرنے سے معنی مراد لیے ہیں، یعنی ایسی بندش کہ اندر کی چیز اس میں باہر نہیں جا سکتی اور باہر کی کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی۔ جب آپ ڈاکخانہ میں جاتے ہو، ڈاکیے کو خط لیتے ہو، جب وہ مہر لگا لیتا ہے اس کے بعد نہ خط سے آپ کوئی چیز داخل کر سکتے ہو نہ ہی اس میں کوئی چیز باہر نکال سکتے ہو۔ تو یہی معنی ہے خاتم کا کہ فرمایا آپ آخری نبی ہیں، وہ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا تھا اس سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ فرمایا نہ کوئی نبی اب آ سکتا ہے نہ ہی اس سلسلے سے کوئی نبی باہر نکالا جا سکتا ہے، اس حوالہ سے آپ آخری نبی ہیں۔ تو یہ تھے وہ دلائل جو کہ ہم نے قرآن سے پیش کیے۔ آئیے چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا۔ یہ ہے مسلم شریف، کیا ہے صحیح مسلم، اور اس کی عربی میں شرح ہے بشرح نووی، بشرح نووی۔ تو یہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ قَالَ وَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال، توجہ، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال، فرمایا اس آدمی کے مکان کی طرح ہے، اس آدمی کے محل کی طرح ہے، جس نے اس آدمی کی طرح ہے جس نے محل بنایا۔ کیا بنایا؟ محل بنایا۔ وَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس نے خوبصورت بنایا، حسین و جمیل بنایا۔ فرمایا إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فرمایا مکان بڑا خوبصورت تھا، محل بڑا خوبصورت تھا، لیکن فرمایا جب لوگ اس کے گرد چکر لگانے لگے تو فرمایا ایک کونے میں اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ حسین و جمیل بڑا ہے، خوبصورت بڑا ہے مکان، لیکن اس آدمی نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یطوفون، چکر لگاتے ہیں اس محل کے گرد، اور وَيَعْجَبُونَ، اشش کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا حسین ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر جب آتے ہیں نا اس کونے پر جہاں ایک اینٹ نہیں ہوتی، جہاں ایک اینٹ نہیں ہوتی، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ لَوْلَا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ، کاش کہ یہاں بھی اینٹ لگا دی جاتی ہے، کاش کہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے، اگر یہاں بھی اینٹ لگا دی دیتی۔ تو آقا کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا قَالَ وَأَنَا اللَّبْنَةُ، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ اس محل کو، وہ جو اس کو مثال دے کر آقا کریم نے سمجھایا، فرمایا یہ محل قصر نبوت ہے، یہ کوئی عام محل نہیں، فرمایا قصر نبوت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جتنے بھی پیغمبر آئے، فرمایا وہ سارا محل بڑا خوبصورت ہے، وہ سارا محل بڑا نیرا زیب ہے، لیکن ابھی ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ فرمایا وہ آخری اینٹ کون ہے؟ فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں، اور میں آخری نبی ہوں۔ ابھی تک میں یہ جو کتابیں ہیں نا اس سے جو حوالہ جات پیش کروں گا وہ احادیث ہوں گی، تو اس پہ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو حوالہ جات ہے کتابوں سے یہ احادیث ہی ہوں گی، تو اس سے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تو آگے
इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए एक और हदीस आपके सामने रखना चाहूँगा, बस मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ। तो ये मुस्लिम शरीफ से मैंने पेश की, एक दूसरी जिल्द है मुस्लिम शरीफ की, उसी से भी एक हदीस पेश करके आगे अपनी बात को बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। बस यही आपके समझ में डालना चाहता हूँ कि आज हम जिस वज़न को सजाए हुए हैं, जिस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हैं, ये कोई कॉन्फ्रेंस आम कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि आज हम समझ के जाएंगे कि ये वो कॉन्फ्रेंस है कि जिसका उन्वान भी हक है, जिसका फरमान भी हक है। तो आइए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से ये हदीस मरवी है, फरमाया मुझे 6 चीज़ों पर दूसरे अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फजीलत दी गई। कितने चीज़ों पर? 6 चीज़ों पर। मैं पहली चीज़ क्या ऊटी तो जवामी अल-कलिम, मुझे जवामी कलम अता किए गए। वनुसिरतु बिर्रौब, दूसरे नंबर पर मुझे रौब अता किया गया। और तीसरे नंबर पर लियल गनाइम, मेरे लिए माल गनीमत को हलाल किया गया। चौथे नंबर पर क्या फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा। आका करीम की देखो आमद से कितना फायदा हुआ। अगर बंदे को पानी न मिले, बंदे के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए, अब बंदा क्या करे, हाथ मट्टी पे मारे, एक बार मार के मुंह पे मारे और दूसरी बार मार के अपने कोहनियों का हाथों समेत कोहने तक मसा करे, अब वो बंदा पाप हो गया है। अब फरमाया ये भी नहीं कि आप बंदा है रेत के टिब्बों में, तो वहाँ कहाँ मस्जिद ढूंढे, कहाँ नमाज पढ़े। फरमाया ये भी सहूलत है, वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदा, अल्लाह ने मेरी आमद के सदके पूरे जमीन को मस्जिद बना दिया है। अब बंदा जहाँ कहीं भी है, अब तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नमाज को दर्जे कबूलियत अता फरमाएगा, शर्फ़े कबूलियत अता फरमाएगा। फरमाया ये है, आगे फरमाया वो उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। फरमाया पहले अंबिया किराम आते थे, कोई बस्ती का, कोई एक इलाके का नबी बनकर आता था। फरमाया वो उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया मुझे तमाम मखलूक के लिए नबी बनाकर भेजा गया है, मुझे तमाम मखलूक के लिए नबी बनाकर भेजा गया है। आखिरी लफ्ज़ बड़े प्यारे हैं, फरमाया मैं आप नबी तो तमाम मखलूक के लिए हूँ, और ये कोई ना समझे कि मेरे बाद भी कोई नबी आ सकता है। वख़ुतिमा बिन नबिय्यून, फरमाया मुझ पर नबूवत के सिलसिले को खत्म कर दिया गया है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये है मुस्लिम शरीफ, इसने हमें बताया, नबी का फरमान सामने आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया नबूवत मुझ पर खत्म हो गई, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आइए अगली किताब ये है बुखारी शरीफ। कुरान के बाद जिस किताब का दर्जा है वो क्या है? बुखारी शरीफ का। किसका है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में कह रहे थे मेरे लल्ला आका का फरमान क्या है। इंशाअल्लाह ताला तवज्जो से बैठिएगा, इसमें 2 चीजें वाजिब होंगी। आज लोग कहते हैं सियासत से मौलवियों का क्या ताल्लुक, सियासत से मौलवियों का क्या ताल्लुक, मौलवी मस्जिद में रहे हैं। तो मैं नहीं, अपनी तरफ से ये मैंने निशान लगाया हुआ है। किताब बुखारी शरीफ है, उम्दतुल कारी, ये शरह सहीह बुखारी की किताब, जिल्द नंबर 14, जिल्द नंबर 14 है। इसमें मेरा फरमान नहीं, आका करीम का फरमान है। इससे 2 चीजें वाज़ेह होंगी। पहला क्या है? फरमाया कानत बनु इस्राईल तसूसुहुमुल अंबिया, फरमाया बनी इस्राईल के अंबिया जो है सियासत किया करते थे। क्या किया करते थे? सियासत, क़यादत किया करते थे। तो फरमाया अब ये इतराज करते हैं हकीकत में इल्म ना होने की वजह से। अब देखो कि इतराज उनका पहुंचता कहाँ है, इतराज उनका कहाँ पहुंचता है।
लेकिन मौलवियों का सियासत से क्या ताल्लुक? आका करीम ने फरमाया अल उलमाउ वारिसतुल अंबिया, उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। जब वारिस उलमा हैं तो फिर क़ियादत भी तो उलमा करेंगे ना, क़ियादत भी तो उलमा करेंगे। फरमाया फिर क्या हुआ? फरमाया कुल्लमा हालत नबीयुन खलफहु नबी, फरमाया जब एक नबी का विसाल हो जाता दूसरा नबी उसकी जगह आ जाता। जब एक नबी का विसाल होता दूसरा नबी उसकी जगह आ जाता। फरमाया व अन्नहु ला नबिय्य बअदी, लफ्ज़ समझ आए हो तो सुभान अल्लाह बहुत बनता है। व अन्नहु ला नबिय्य बअदी, फरमाया पहले जब किसी नबी का विसाल होता उसकी जगह दूसरा नबी आ जाता। फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। फरमाया फिर ये काम आगे कौन बढ़ाएगा दीन का, इस्लाम का? फरमाया वसकूनो वसयकूनो खुलफा, मेरे बाद खुलफा होंगे। कौन होंगे? खुलफा होंगे। फरमाया फिर कितने होंगे? फरमाया कसरत में होंगे। क्या होंगे? कसरत में होंगे। ये जो इस्लाम हम तक पहुंचा है 1400 सदियां गुजर गई, तो 1400 सदियां के बाद आज जो हमें तक इस्लाम पहुंचा है ये किसने पहुंचाया है? ये उलमा ने हम तक पहुंचाया है, ये उलमा ने हम तक पहुंचाया है। फरमाया मेरे बाद खुलफा तो होंगे लेकिन नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाएगा। ये किसने हमें बताया? बुखारी ने। बुखारी में ये आया, इसमें ये हमें अपने महबूब का फरमान सुनाया। आइए आगे एक और बुखारी शरीफ में अहादीस आज रखना चाहता हूँ, वक्त मुख्तसर है, तर्जुमा कर रहा हूँ। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनुल आखिरून अस्साबिकून, नहनु आखिरून अस्साबिकून। फरमाया हम आने में सबसे आखिर में हैं। नानुल आखिरून, फरमाया आए हम सबसे आखिर में हैं। अस्साबिकून यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत के दिन क़ियादत हमारी होगी, हम सबके आगे आगे होंगे। आने के लिहाज से आखिर में हैं, जन्नत में जाने के लिहाज से पहले होंगे। जन्नत में जाने के लिहाज से पहले होंगे। तो इससे फरमाया फर्क इतना है, उतुल किताब मिन क़ब्लिना, फरमाया उनको किताब हमसे पहले दे दी गई, लेकिन फरमाया हम आखिर में आए, जन्नत में जाने के लिहाज से हम पहले होंगे। तो ये भी आखिर का मफ़हूम इसमें हमें बताया कि आखिरी, हम आखिरी हैं। हम क्या हैं? आखिरी हैं, आखिरी हैं। हमारे बाद ना कोई और उम्मत हो सकती है, ना कोई नबी हो सकता है। नबी के फरमान ने ये बताया नानुल आखिरून, हम आखिरी हैं। हम क्या हैं? आखिरी हैं। हमारे बाद ना कोई और उम्मत हो सकती है और ना ही कोई और नबी हो सकता है। तो नबी के ये फरमान ने वाज़ेह किया। आगे बुखारी शरीफ की एक और अहादीस अर्ज करके फिर एक किताब जो है तिरमिज़ी शरीफ से चंद हवाला पेश करूंगा। फरमाया बुइस्तुआना वस्साअता हाकज़ा, बुइस्तुआना वस्साअता हाकज़ा व यशीरु बिइस्ताइहि व यमुद्दु बिहिमा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मेरे जो उंगली मिली हुई है कोशिश करूंगा, ये है शहादत की उंगली। ये क्या है? शहादत। और इसके साथ वाली है वुस्ता, दरमियानी उंगली। आका करीम ने फरमाया मैं और क़यामत इस तरह है, मैं और क़यामत इस तरह मिले हुए हैं। अब जैसे इस और इस के दरमियान कोई और उंगल नहीं, इस और इसके दरमियान कोई और उंगल नहीं। फरमाया शहादत और वुस्ता के दरमियान कोई उंगल नहीं। फरमाया पहने ही मेरे
आइए चंद हदीस आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ तिरमिज़ी शरीफ से। तिरमिज़ी शरीफ की चंद हदीस आज करके मैं अपनी बात को अपने मौजू की तरफ लाने के लिए, ताकि आपको ये भी बताना है कि सिर्फ खत्म नबूवत के इनकारी कादियानी भी नहीं और भी हैं, कादियानी ही नहीं और भी हैं। तो इस हवाला से उनके हवाला भी पेश करने हैं। तो फरमाया अब वाज़ेह हो जाएगा ये भी मेरे नबी का फरमान। फरमाया इन्ना रिसालता वन नबूवता कद इंक़ताअत वला रसूल बादी वला नबिय्य बादी। आप मेरे साथ कहें वला रसूल बादी वला नबिय्य बादी, ला रसूल बादी वला नबिय्य बादी, ला रसूल बादी वला नबिय्य बादी। फरमाया रिसालत और नबूवत खत्म हो चुकी, रिसालत और नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका। फरमाया मेरे बाद ना कोई रसूल होगा ना कोई नबी होगा। रिसालत और नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। मेरे बाद ना कोई रसूल आ सकता है ना कोई नबी आ सकता है। तो इतने सारे हवालाजात से हमें क्या पता चला? आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद और कोई नबी नहीं आ सकता, आपके बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। तो आइए अब मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। सबसे पहले जिसको आप जानते हो, हमारे एक सदी पहले जो खत्म नबूवत का एक डाकू आया था जिसको मिर्जा कादियानी से लोग जानते हैं, तो उसके लोग कहते हैं कि क्या पता कादियानी कौन है, चूंकि बच्चों को बताना है। आप सबने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीस और कुरान से भी साबित हुआ कि हमारे नबी आखिरी नबी है। हमारे नबी क्या है? आखिरी नबी है। हमारे नबी के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। लेकिन कादियानी को क्यों काफिर कहा गया? कादियानी को क्यों मुर्तद कहा गया? इसलिए कि उसने नबूवत का दावा किया। उसने क्या किया? नबूवत का दावा किया। आइए उसकी किताब, उनकी किताबों से मैं हवाला पेश करूंगा कि आया कि उसने नबूवत का दावा किया या नहीं किया। मिर्जा कादियानी अंजाम आधम सफ़ा 62 में हदीस लिखता है कि इल्हामात में मेरी निस्बत बार बार बयान किया गया। अब आपने सुभान अल्लाह नहीं कहना। वो क्या कहता है? इल्हामात में मेरी निस्बत बार बार बयान किया गया कि ये खुदा का फरिश्ता है। फरिश्ता कहते हैं भेजा हुआ। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अपने बारे में मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरे बारे में बार बार आया अंजाम आधम में कि ये खुदा का फरिश्ता है, खुदा का भेजा हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह। और खुदा का मामूर, खुदा का अमीन और खुदा की तरफ से आया है। जो कुछ कहता है इस पर ईमान लाओ। नाउज़ुबिल्लाह। और इसका दुश्मन यानी मिर्ज़ा कादियानी का नाउज़ुबिल्लाह अपना कहता है मुझे इसका दुश्मन है वो जहन्नमी है। अब मैं आपके सामने हवाला याद रखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से पता क्या चला कि आप आखिरी नबी हैं। अब ये कहना कहता है कि आका आखिरी नबी नहीं, नाउज़ुबिल्लाह मैं आखिरी हूँ। आका आखिरी नहीं, मैं आखिरी हूँ। मेरे बाद बार बार एक कुरान में आया है कि इस पर ईमान लाओ, ये मामूर मिन अल्लाह है। तो नाउज़ुबिल्लाह। तो ये है फितना कादियानियत कि वो हमारे नबी के बाद अपने आप को नबी कहता है। नाउज़ुबिल्लाह। तो लिहाजा नबी के फरमान से, कुरान से ये पता चला कि आपके बाद कोई नबी नहीं। इसी तरह एक रूहानी खजाना दाखिल वाला सफ़ा 11 रूहानी खजाना, ये मिर्ज़े की किताबें हैं, जिल्द 18 सफ़ा 231 में है। सच्चा खुदा वही है। अपने बारे में क्या कहता है मालूम? कहता है सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। नाउज़ुबिल्लाह। ये है मिर्जा मलऊन की दास्तान।
कादियानी, लेकिन एक हमारे मोहल्ले में भी, हमारे गलियों में भी घूमता फिरता है। अब मैं आपके सामने, चूंकि किताबें तो अवेलेबल नहीं हैं, ये हमने कोशिश करके अपने मोबाइल से किताब निकाली, फिर उसको हमने ये आप कॉपी किया। आप उनको तो बच्चा बच्चा जानता है कि वो मुर्तद है, दायरा इस्लाम से खारिज है, लेकिन एक नारा हमारे यहाँ जनाज़-ए-आम है, शिया सुन्नी भाई भाई, ये अक्सर कहा जाता है। तो ये मैं हवाला याद रखना चाहता हूँ, ये अरबी में है, सुनिए। मैंने नहीं लिखी हुई, ये किसने लिखी है? मेमून बिन मोहम्मद नस्वी, इमाम नस्वी ने अपनी किताब में लिखा, अपनी किताब बहरुल कलाम में लिखा। किसका? फरमाया उस वक्त हम अगर खत्म नबूवत पर पहरा देते थे तो उस वक्त जो खत्म नबूवत के डाकू थे वो कौन थे? कौन फरमा रहे हैं? इमाम नस्वी मेमून बिन मोहम्मद। इनका तरीके मिसाल 506 हिजरी, आज है 1443 हिजरी, कबर 900 साल पहले, 900 साल पहले किसने बताया कि हम अगर ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करते थे तो किसके बारे में करते थे? फरमाने लगे, फरमाया फी इस्बात खत्म नबूवत वल मुरसलात बिसय्यिदिना व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उन्वान दिया उन्होंने अपनी किताब में, फसल बांधी, उसका उन्वान क्या दिया? फी इस्बात खत्म नबूवत वल रिसालात बिसय्यिदिना व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे फरमाते हैं वसीनकुन मिनहुम, फरमाया सिर्फ किस्म को कहते हैं, मिनहुम उन में से, किन में से? नीचे हवाशी में लिखा है आए मिनर रवाफिद। चूंकि हुकूमती पाबंदियां हैं तो ये तो हमारा अपना इदारा है, अपने घर में बैठे हैं, तो दूसरी जगह पे बैठे हों तो हुकूमत वाले नाम नहीं लेने देते। तो ये याद रखें, जब रवाफिज की बात आए तो वो काले काले काली मद्दियों वाले, रवाफिज काले कालों को कहा जाता है, जो 10 दिनों में काली मद्दी पहनकर सीना पीटते हैं, उनको रवाफिज कहा जाता है। फरमाया हमारे जमाने में हम अगर खत्म नबूवत पे पहरा देते थे तो वो डाकू चोर लुटेरे कौन थे? फरमाया आया मिनर रवाफिज, वो फरमाया रवाफिज थे, शिया थे। कौन थे? शिया थे। अच्छा क्यों थे? वो बताना चाहता है वो क्यों थे। फरमाया कालू, वो क्या कहते थे? कहते थे बिअन्नल अर्दा ला तखलू मिन नबीय्यिन, फरमाया जमीन कभी भी, सतह जमीन कभी भी नबूवत से खाली नहीं हुई, सतह जमीन कभी भी नबूवत से खाली नहीं हुई। यानी इस सतह जमीन पर हर वक्त कोई ना कोई नबी मौजूद रहता है। नऊजुबिल्लाह, वो कहते हैं कि नऊजुबिल्लाह हर वक्त कोई ना कोई नबी मौजूद रहता है। अब कहाँ गया वो खत्म नबूवत का अकीदा? काका फरमाते हैं मेरे पास कोई नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ। अब वो कहते हैं कि नबी कोई ना कोई मौजूद रहता है। कहते हैं कि कोई जमीन की सतह है, जमीन पर कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जहाँ नबी कोई नबी मौजूद ना हुआ हो। और फरमाते हैं वन नबूवत, ये लिखने वाले बहरुल कलाम में ये उनका कलाम लिख रहे हैं, कहते हैं वन नबूवत सारत मीरासन लिअली रज़ियल्लाहु अन्हु व औलादिही। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद नऊजुबिल्लाह ये जो नबूवत थी ये हजरत अली को विरसे में मिली। नऊजुबिल्लाह हजरत अली को विरसे में मिली। अब हमारा अकीदा नबी का फरमान कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, वो कहते हैं
नबी के बाद नबूवत हजरत अली में मुंतकिल हुई। नाउज़ुबिल्लाह, जो कहना ये चाहते हैं कि आप नबी की नबूवत खत्म हो गई, अब नाउज़ुबिल्लाह हजरत अली की नबूवत है। फरमाया सिर्फ हजरत अली नहीं, फरमाया वो औलाद ही, फरमाया आपके औलाद यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन, उनको भी से में नबूवत मिली। अब देखो कहाँ तक उनका ये अकीदा है। हम तो रोते हैं कादियानी को कि वो खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, उन्होंने नबूवत का दावा किया। हाँ वो, अब ये भी सुनो, हम चारों से प्यार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप सदीक़ अकबर से प्यार करते हैं। अगर कोई भगोड़ा अपने आप को सुनने के लवाने वाला नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नबी कह दे, तो हम जैसे आज उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, कल उस भगोड़े का भी करेंगे कि आका के बाद वो नबी नहीं, वो तो वो है जिन्होंने मुसलमान कज़्ज़ाब के साथ जंग करके ये बताया था मैं आखिरी नबी का गुलाम हूँ, मैं आखिरी नबी का गुलाम हूँ। तो फरमाया आगे क्या कहते हैं, फरमाया वयुफ़रदु अलल मुस्लिमीना ताअतु अलीय्यिन, फरमाया मुसलमानों पर हज़रत अली की इताअत फ़र्ज़ है। अब फ़र्ज़ किनकी होती है? इताअत फ़र्ज़ किनकी होती है? अल्लाह की होती है। तो नाउज़ुबिल्लाह सिर्फ हज़रत अली को नबी नहीं मानते, वो अल्लाह कहते हैं। सिर्फ नबी भी नहीं, अल्लाह कहते हैं। अब जो नबी को नबी ना माने, हमारे खुदा को खुदा ना माने, तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? फरमाया वो कहते हैं कि मुसलमानों पर हज़रत अली की इताअत फ़र्ज़ है। फरमाया ला यरा ताअतहु करीना यब्दु, फरमाया जो हज़रत अली की इताअत को फ़र्ज़ न जाने वो काफिर है। नाउज़ुबिल्लाह। अब वो आपको कहते हैं कि तुम हज़रत अली की इताअत को फ़र्ज़ नहीं मानते, लिहाजा तुम काफिर हो। लेकिन नबी के फरमान से मैंने साबित किया कि हज़रत अली खलीफा हैं, नबी नहीं। अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीका लह, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हज़रत अली अल्लाह की मखलूक से हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह नहीं। हज़रत अली अल्लाह के पैगंबर के खलीफा है, नबी नहीं। जो हज़रत अली को नबी माने, नबी के बाद वो खत्म नबूवत का मुनकिर है, वो खत्म नबूवत का मुनकिर है। तुम कहोगे ये तो तुम्हारे अपनों की किताब थी, वो उन्होंने ऐसा कहा है। मैं हवाला जात और भी पेश करता, उनकी अज़ान हो चुकी है, वक्त भी इख्तिसार है। ये रूहुल बयान है, ये हमारी किताब रूहुल बयान, तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 7 है। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 188, सफ़ा नंबर 188 में वो सारी हदीस जो मैंने पहले पढ़ी कि मसली व मसलुल अंबिया, ये वाली हमारा खातमुन नबिय्यीन, ये हदीस जिक्र करने के बाद आगे सारा ये जो बहरुल कलाम वाले ने जिक्र किया, ये जो बहरुल कलाम वाले ने जिक्र किया, वही सारा कुछ जिक्र किया। और आखिर में फरमाया जो नबी के बाद किसी और को नबी माने, फरमाया यकफुर, वो काफिर है। वो क्या है? काफिर है। और इसके बाद फरमाया हज़रत इमाम अबू हनीफा, जिसकी वजह से हनफी कहा जाता है, उनका कौल नकल किया, फरमाया मन तलबा मिन्हु अलामा, फरमाया नाउज़ुबिल्लाह किसी ने नबूवत का दावा कर दिया, आप कोई सादा बंदा उससे कहेंगे दलील क्या है, किसी ने दावा किया, आप कोई उससे दलील मांग रहा है कि तेरी नबूवत की दलील क्या है, फरमाया जो उस झूठे कज़्ज़ाब से दलील मांगे, फरमाया वो दलील मांगने वाला भी काफिर है। इमाम अबू हनीफा का फतवा है। इमाम अबू हनीफा का हनफी हो, इमाम अबू हनीफा
दलील मांगने वाला भी काफिर है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं दलील मांगने वाला भी काफिर है। अब है ये उसूलुल काफी या बोर्ड को लेने की उसूल काफी। अब ये हो गई सुन्नियत की वाज़ेह निशानी। वो कहते हैं ये जो नबूवत है या रिसालत है या खुल्लत है इसका दर्जा बयान करते हैं। फरमाया इमामत क्या है। अब वो इमाम कहते हैं, हम भी कहते हैं 12 इमाम। 12 इमाम मानते हो ना सब? हाथ खड़ा करते मेरे साथ कि 12 इमाम हम सब मानते हैं। हमारे इमाम हैं उनके नहीं, वो हमारे इमाम हैं। अब हम इमाम मानते हैं। इमाम का माना है मुक़्तदा, पेशवा, रहनुमा, महबूब। हमारे नजदीक, उनके नजदीक इमाम का क्या माना है? आगे यहाँ पे बोले वाले सुनी कहते हैं हम भी तो इमाम मानते हैं, वो भी तो इमाम मानते हैं, तो फिर तो एक हो गए। हम भी इमाम मानते हैं, वो भी इमाम मानते हैं, फिर तो फर्क न रहा। हाँ, हम इमाम मानते हैं पेशवा, हम इमाम मानते हैं महबूब, हम इमाम मानते हैं रहनुमा। वो इमाम क्या मानते हैं? फरमाया इन्नल इमामता हिया मंज़िलतुल अंबिया। नाउज़ुबिल्लाह। वो कहते हैं इमाम जो होता है वो अंबिया के दर्जे में होता है। नाउज़ुबिल्लाह। यानी इमामत का दर्जा अंबिया का दर्जा है। और आगे फरमाया इन्नल इमामत खिलाफतुल्लाह। ये इमामत जो है ये खिलाफत है अल्लाह की। नाउज़ुबिल्लाह। इस कदर वो शदीद। आगे ये उनका नबूवत और रसूल और नबी और इमाम में जो फर्क है उस फर्क को क्या कहते हैं? नबी किसको कहते हैं, रसूल किसको कहते हैं, और वो अपने यहाँ इमाम किसको कहते हैं? ये भी वही किताब है उसूल काफी। इसका सफ़ा नंबर है 248 जिल्द नंबर 1 है। किताबुल हुज्जा है। अल फर्क बैन रसूल वल नबी वल मुहद्दिस। तो फरमाया कि रसूल किसको कहते हैं? वो कहते हैं अर रसूल अन्ना रसूल अल्लज़ी युनज़लु अलैहि जिब्रील। फरमाया वयराहु वयस्मउ कलामहु वयुनज़लु अलैहि अलवही। फरमाया रसूल वो होता है जिसके पास जिब्रील आते हैं, वो उसको देखता भी है, यानी जिब्रील को देखता भी है और सुनता भी है, देखता भी है, उससे सुनता भी है, और उसमें फिर वही मंजूर होता है। ये रसूल की तारीफ उन्होंने की, हमारी तारीफ नहीं, उनकी है कुलैनी की। उसने कहा कि रसूल वो है जो जिसके पास जिब्रील आता है और वो रसूल जो है जिब्रील को देखता है, उसके कलाम को सुनता है। याद रखना, ये बात याद रखना है आपने कि रसूल वो है जिसके पास वो कहते हैं जिब्रील आया और वो जिब्रील की आवाज को सुनता है, देखता भी है। आगे नबी की वो क्या तारीफ करते हैं? नहीं, वो कहता है नबी कौन है? फरमाया वन नबी रुब्बमा यस्माउल कलाम व रुब्बमा रा'a अश-शख्स व लम यस्मा। फरमाया कभी तो नबी जो है कि नबी के कलाम को सुनता है, कभी जो नबी होता है वो जिब्रील के कलाम को सुनता है, और कभी जो है जिब्रील की शक्ल देखता है लेकिन कलाम नहीं सुनता। नबी के अब फर्क बयान कर रहा है। रसूल का फर्क ये बयान किया कि रसूल आता है, रसूल यानी जिब्रील आता है, जिब्रील आता है, रसूल उसको देखता है, उसका कलाम सुनता है, उसका कलाम सुनता है। नबी नबी ये है उनके नजदीक कि जिब्रील को कभी कभी देखते हैं और कभी उसका कलाम सुनते हैं, उसको देखते नहीं। आगे इमाम का वो क्या कहते हैं? फरमाया जिस तरह रसूल के बाद जिब्रील आता है, जिस तरह
रसूल के पास जिब्रील आता है, नबी के पास जिब्रील आता है। फरमाया इसी तरह वो कहते हैं, फरमाया अल इमामु हुवा अल्लज़ी यस्माउल कलाम व ला यरा शख्स। फरमाया उनके नज़दीक इमाम वो है जो जिब्रील की आवाज को सुनता है लेकिन जिब्रील को देखता नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वही का सिलसिला तो आका करीम पे बंद हो गया, आका करीम के बाद तो जिब्रील का नज़ूल नहीं हुआ, तो जो इमाम के पास जिब्रील का नज़ूल माने तो बताओ वो क्या दर्जा दे रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं अल इमामतु हिया मंज़िलतुल अंबिया, कि इमामत जो है ये क्या है, नबी के अंबिया के दर्जे में है। इमामत अंबिया का दर्जा देते हैं। तो ये चंद हवाला जात इनके नारे रखे, उनके नमाज का वक्त है। तो आखिर में आप समझ जाएंगे, जिस तरह कादियानी खत्म नबूवत के मुनकर हैं, इस तरह ये भी खत्म नबूवत के मुनकर हैं। रवाफिज़ अब खवारिज का एक हवाला पेश करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ नवाना चाहता हूँ। मेरे हाथ में है तहज़ीरुन नास। क्या है तहज़ीरुन नास? लिखने वाला कौन है? कासिम ननौतवी। ये है मेरे हाथ में तहज़ीरुन नास, लिखने वाला है कासिम ननौतवी। वो कहता है हमारा अकीदा क्या है, आपके पास कोई नबी नहीं। मैंने 7-8 हदीसें आपके सामने रखी, कुरान से आपको मुद्दा पेश किया। हमारा अकीदा हदीस कुरान से साबित है, आपके पास कोई नबी नहीं। लेकिन ये खवारिजी देवबंद ये कहते हैं अगर बिलफर्ज बाद ज़बानाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मुहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। नाउज़ुबिल्लाह। कहता है अगर नबी के जमाना में कोई और नबी आ जाए तो आपके आखिरी होने में खातमियत में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इससे पता क्या चला, जैसे कादियानी हम कहते हैं काफिर है, ऐसे कुलैनी वाले भी काफिर हैं, ऐसे ननौतवी वाले भी काफिर हैं। तो खत्म नबूवत खत्म नबूवत का मकसद ये नहीं कि हम कादियानी को तो रगड़ा दें लेकिन कुलैनी वालों को छोड़ दें, हम कादियानियों को तो रगड़ा दें ननौतवी वालों को छोड़ दें। जैसे कादियानी मुनकिर नबूवत हैं खत्म नबूवत के, ऐसे कुलैनी वाले वो 10 दिन काले वर्दी पहनकर सीना कूटने वाले वो भी नबी की नबूवत के मुनकिर खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। ऐसे ही दियावना देवबंद वाले उनकी किताब तहज़ीरुन नास है। हमारा चाहते और बहुत थे लेकिन वक्त नहीं है। तो वो भी कहते हैं अगर आपके जमाना में बिलफर्ज कोई नबी आ जाए तो आपकी खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउज़ुबिल्लाह। तो लिहाजा ताजदार खत्म नबूवत का सजाने का मकसद ये है कि ना सिर्फ एक और अगला लगाया जाए, वो खबीस है, मलऊन है, जितनी गालियां दे सकते हो उसको भी दो, ऐसे उन गुलामी वालों को भी दो, ऐसे उन ननौतवी वालों को भी दो। जैसे वो मुनकिर ऐसे वो मुनकिर, जैसे वो मुनकिर ऐसे वो मुनकिर। मैं इसी पर इत्तिफाक करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अकीदा अहले सुन्नत के साथ वाबस्ता फरमाए और आखिर तक मरते वक्त तक हमें इसी अकीदे पर साबित कदम रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम दोस्तों से